Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. I, Priyanka, welcome to all on online science class at home. We have done our chapter number 1, that was nutrition in plants. Today we are going to start our next chapter, that is nutrition in animals. In this chapter we will discuss about the steps of nutrition, and after that nutrition in amoeba, nutrition in human beings, and nutrition in grass eating animals. Now स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम ये पढ़ेंगे बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर जो इनटेक ऑफ फूड है, जो हम खाना लेते हैं, खाना लेने से जो एग्जिट ऑफ वेस्ट है वहाँ तक हमारे कौन कौन से स्टेप्स आते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. यानी कि जब आप खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से जो प्रोसेस होते हैं, दोज आर स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, and after that we will do nutrition in amoeba. Amoeba is unicellular organism. Unicellular means same cells से जो मिलके बना होता है. uni means same, cellular means cells, same cell से जो बना होता है, that is unicellular. Okay, and after that nutrition in humans. Humans are multicellular. Multicellular means, multi means many, cellular means cells, means an organism that is made up of many type of cells, that is known as multicellular organism. Like human beings, cow, buffalo, dog, goat, तो these are multicellular organisms. multicellular में like जैसे हमारी बॉडी में स्टमक है, लीवर है, पैनक्रियाज है, आईज है, नोज है, तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं बेटा. तो अलग अलग ऑर्गन्स है, और ये ऑर्गन्स किससे बने हैं? टिश्यू से बने. टिश्यू की भी स्मॉलर यूनिट सेल होती है, तो बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर मल्टी सेलर. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड आफ्टर दैट वी विल डू न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. यानी कि जो एनिमल्स घास खाते हैं, हर्बीवोर जो होते हैं, उनके अंदर जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, वो कैसे होता है. वी विल डिस्कस these main 4 topics in this chapter. First of all, steps of nutrition. After that, nutrition in amoeba, nutrition in human beings, and nutrition in grass eating animals. Now let's start our chapter. I'll count down 5 to 1 and you will open your book. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now let's start. In chapter 1 you have learnt about nutrition in plants, and you have also learnt that animals are heterotrophic in their mode of nutrition. Heterotrophic means, I told you, heterotrophic. Hetero means different or other, trophic means nourishment. यानी कि जो अपनी बॉडी में खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते, they can't prepare their own food. They are known as heterotrophic, means they are totally depends on autotrophs. I hope you understand. They can't prepare their own food and they eat either plants or animals. यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो या तो प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, टू ऑब्टेन एनर्जी, क्योंकि फूड से एनर्जी मिलती है ना. ओके, नाउ डू यू रिमेंबर द फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स से अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना. फॉर अ क्विक रिकैप, ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट, फ्लोर, राइस, दाल्स, fruits and vegetables are obtained from plants, and milk, curd, cheese, eggs and meat, they come from, कहाँ से आते हैं? Animals से. Now the food thus obtained is used for growth. यानी कि जो आपने खाना खाया उससे क्या होती है? हमारी ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है. अगर आपको चोट लग जाती है तो उसकी रिपेयरिंग भी होती है, ठीक है. एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. In this chapter we will learn about nutrition in animals. Nutrition in animals के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें. Now first of all we will discuss steps in animal nutrition. Animal nutrition के अंदर जो steps होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? Majority of animals take food in the form of solids. देखो, हम जो खाना खाते हैं वो सारा का सारा ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में ही होता है. आप लिक्विड या तो वाटर लेते हो, टी लेते हो, कॉफी लेते हो, तो लिक्विड कम लेते हो बेटा आप. लाइक आपने जैसे सपोज ब्रेकफास्ट में ब्रेड लिया
ठीक है, कोई फ्रूट खा लिया या फिर आपने चपाती खा ली, पराठा खा लिया, तो व्हाट इज दैट? दैट ऑल आर सॉलिड फॉर्म. आई होप यू अंडरस्टैंड. ग्रेट. And this form of nutrition in which food is eaten in solid form is called holozoic nutrition. यानी कि जो आप सॉलिड फॉर्म में उसको लेते हो उस, और जब वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. एंड एज द फूड इटन कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने 7 कंपोनेंट्स पढ़े थे प्रीवियस ईयर. कौन कौन से पढ़े थे? फर्स्ट वन वॉज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर, रफेज पढ़े थे. ओके, तो इट मीन्स जो हमारा फूड होता है उसके अंदर डिफरेंट ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर. ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स ही तो सब्सटेंस हो गया ना कि अलग अलग एक बार कार्बोहाइड्रेट. आप ये थोड़ी ना कि अब जैसे सपोज आप खाना खा रहे हो तो खाने में आप सब कुछ इकट्ठा ही तो लेते हो. चपाती खा रहे हो, चपाती के साथ आप सब्जी भी खा रहे हो, सब्जी में दूसरे मिनरल्स भी हैं, वाइटामिन्स भी हैं, और प्लस अगर आप दाल खा रहे हो तो उसमें प्रोटीन भी है, और कार्बोहाइड्रेट तो चपाती में होता ही है. तो इट मीन्स, और प्लस आपने जो रोटी के ऊपर जो मक्खन है या फिर घी है वो लगा हुआ है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज फैट. तो आप एक ही टाइम पे जो खाना खाते हो तो उसके अंदर आपके सारे के सारे बैलेंस डाइट, इसीलिए तो कहते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो इट मीन्स दैट इज कॉम्प्लेक्स. ओके, कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको तोड़ने के लिए ब्रोकन डाउन इन द एनिमल बॉडी टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स. तो अगर हमारी बॉडी में कहीं पे प्रोटीन की जरूरत है, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, कहीं पे फैट की जरूरत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हमारी बॉडी को उसको तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो उसको मिलेगा वो, क्योंकि हम तो उसको ऐसे ही सारा का सारा इकट्ठा लेके जा रहे हैं. अंडरस्टैंड. नाउ द फूड इटन बाय एनिमल्स अंडरगोज 5 स्टेप्स. 5 स्टेप्स में कवर होता है. फर्स्ट आता है हमारा इंजेशन. इंजेशन होता है बेटा इनटेक ऑफ फूड. ठीक है, जो खाना हम ईट करते हैं, टेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड, दैट इज इंजेशन. एंड डाइजेशन, यानी कि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है वो स्मॉलर सब्सटेंसेस में टूटता है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज डाइजेशन. ठीक है. एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि उससे जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करना. एसिमिलेशन होता है यूटिलाइज करना, यानी कि जो हमारा खाना टूट गया है उसको एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज करना, दैट इज एसिमिलेशन. एंड आफ्टर दैट लास्ट वन, दैट इज इजेशन. इजेशन होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट है, जो हमने खाया है खाना, तो उसके अंदर से यूजफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन कुछ सब्सटेंस हमारा वेस्ट की फॉर्म में भी निकलता है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज इजेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 5 टर्म्स: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, bye, happy learning. Tomorrow we will start our first step, that is ingestion.